Hi everybody. So this session is about checkpoint troubleshooting. So ये सेशन में हम कुछ कमांड को देखेंगे जिसमें जो कि बहुत यूजफुल है while troubleshooting of HA in checkpoint. So at the moment, if you run the command, just for a minute, I've already explained this topology and there are three sessions already uploaded related to theory part and configuration part. So this is the last session of checkpoint related to troubleshooting. And it is very useful while doing in the production. So same things we are going to explain we generally use in the production. So topology I have already explained. So at the moment this firewall gateway 1 is active and gateway 2 is standby. Okay. So I am on active box at the moment. If you run the command cp ha probe state, so you can see gateway 1 is active and gateway 2 is standby. For example, गेटवे वन जो है अभी एक्टिव वो डाउन चला जाता है सो विल ट्राई टू डू मैन्युअली फेल ओवर. सो मैं यहाँ पर मैन्युअली फेल ओवर करेंगे एंड विल ट्राई टू सी द लॉग्स. ओके. सो पहला कमांड होता है cph प्रोव स्टेट टू चेक द एच स्टेटस एंड देर इज वन कंसेप्ट p nodes. So p nodes is basically is a way of monitoring process of the clusters. It's kinds of problematic notifications. So आपको अगर सारे पी नोट्स देखने हैं, पी नोट्स इज काइंड्स ऑफ इंटरफेस ऐसे समझो. अगर आप एक कमांड रन करते हो cph probe स्पेस माइनस से लिस्ट, सो इट इज गोइंग टू शो ऑल द पी नोट्स. सो पहले इसको रन करके देखते हैं, फिर विल ट्राई टू डू फेल ओवर एंड देन विल सी द लॉग्स. ये कमांड अगर आप रन करते हो, जस्ट वन मिनट, cpha probe स्पेस माइनस सेल एंड लिस्ट, so it is going to show all the p nodes related things. Okay. It is going to show all list of p nodes. So p nodes is the way of monitoring process of the cluster. So अगर आप प्रोडक्शन में ट्रबल कर रहे हो, तो जैसे अभी हमारे सारे स्टेट क्या दिखा रहा है, ओके दिखा रहा है, ओके ओके, एवरीथिंग इज ओके. सो अभी पी नोट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, एवरीवेयर ओके ओके दिखा रहा है. फॉर एग्जाम्पल इफ एनी इंटरफेस गोज डाउन, सो यहाँ पर कुछ वहां पर दिखा देगा कि पी नोट्स हैज सम प्रॉब्लम. ओके, वो भी करके हम देखेंगे. एंड अगर ये कमांड रन करते हो cph probe list, it is going to show only problematic nodes, p nodes. So if you going to run this command cph probe and then list, so it's showing there are no p nodes in a problem state at the moment. Okay. What I will do, I'm just trying to shut down this interface. So I'm trying to log in through console. This is the console. Just a minute, let me log. Okay. So go on the keys and set interface Ethernet 1 state off. Okay. And if you run the command, this command, see now it is showing interface active check current device state problem and current state problem time since last report for 4 seconds. So whenever any problem related to interface in HA, whatever Ethernet 1, Ethernet 2, Ethernet 3, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा related to interface, it is going to show the P nodes. So P nodes is the way of monitoring cluster process, we can say. It's mostly related to the interface. Okay. फिर हम इस इंटरफेस को क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं and save config. And if you're going to run the command cph probe list, it's showing there are no p nodes in problem state. So I hope you guys understand the actual meaning of p nodes. Okay. There are two daemons which is mostly related related to the HA part, and mostly both are responsible generally, we can say, for monitoring HA related things. So CPWD जो होता है, checkpoint watch daemon होता है, it's work to monitor all the important daemon. अगर आप एक कमांड रन करते हो,
cpwd_admin list. So it is going to show all the daemon. So अगर E है मीन्स इट इज एजुकेटेड, T मीन्स टर्मिनेटेड, सो इट शुड बी इन एजुकेटेड मोड ऑलवेज. आपको हमेशा ई में ही दिखना चाहिए सारे डेमन. इफ इट इज शोइंग इन T मीन्स इट इज टर्मिनेटेड, तो दैट इज इशू, वो हमारे प्रॉब्लम में है. सो CPWD इज watchdog चेक पॉइंट watchdog daemon. इट्स वर्क टू मॉनिटर ऑल द इम्पोर्टेंट डेमन. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको इस कमांड से आप देख सकते हो स्टेटस इफ यू फील एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू ये थिंग्स. ओके, अगर इसमें से कोई भी डेमन आपका टर्मिनेटेड है देन वी नीड टू वर्क ऑन दैट. पॉसिबली नीड टू स्टॉप द सर्विसेज, स्टार्ट द सर्विसेज. उसके बाद भी नहीं हुआ देन ट्राई टू इन्वॉल्व द वेंडर विथ प्रॉपर आउटपुट्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इज, कभी भी फेलवर होता है हमारे कंपनी में डिवाइसेज में, एक्टिव एस्टेट में फेलवर होता है. सो दिस मैसेज वार लॉग मैसेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू शो द टाइमिंग एंड व्हाई इट वेंट डाउन. ओके, इससे पहले हम क्या करेंगे, अगर ये कमांड रन करोगे आपको cphprobe space -a, इट इज गोइंग टू शो इशू विद इंटरफेसेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर क्लस्टर्स. अगर आप एक कमांड रन करते हो फॉर एग्जांपल cphprobe space -a if, तो एट द मोमेंट सारे इंटरफेस जो है ऑफ है. इथरनेट 0 is management interface, so we can ignore it. Ethernet 3, Ethernet 2, Ethernet 3, all are off. Okay, and Ethernet 3 is just for sync purpose. This is our HA interface. So आपको अगर इंटरफेस लेवल पे चीजें जाननी है तो we can run the command cphprobe space -a if. It is going to show like which interface is up and which interface is down. अगर हमारी इंटरफेस मान लो इस केस में 3 डाउन है, तो आपको उसकी ट्रबलशूट करना पड़ेगा. why it is down, we need to do some troubleshooting. Sometimes it required to do physical level of troubleshooting also. जैसे लाइन वगैरह भी कभी प्रॉब्लम होता है देन इट वेंट डाउन. ओके, and if you want to see a specific about that interface, we can run this command eth tool and then use the interface number. So it is going to show all the details about Ethernet 3. For example, हम देखते हैं, it is going to show all the things about Ethernet 3. Okay, this command is very very important if you want to find the root cause. For example, अगर ऐसे देखते हैं, let me do the cluster XL admin down, cluster XL admin down, and then run the command cphprobe state. सभी क्या है हमारा, गेटवे 1 डाउन है एंड गेटवे 2 एक्टिव बन गया बिकॉज हमने क्लस्टर एक्सेल डाउन किया मैन्युअली हमने डाउन किया उसको. और यहाँ पर देख रहे हो, अगर हमें जानना है कि क्यों डाउन हुआ है, हमने सीपीयू पर स्टेट मारा तो यहाँ पर रीजन दिखा रहा है. क्या दिखा रहा है, इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, लोकल क्लस्टर मेंबर हैज फीवर क्लस्टर इंटरफेस कॉन्फ़िगर्ड कंपेयर टू द अदर क्लस्टर मेंबर्स. ये रीजन से कुछ ज्यादा पता नहीं चल रहा. देन हाउ वी कैन डू लिटिल बिट मोर. सो आप हम वारलॉग में मैसेजेस जाकर देखेंगे. ओके, बट वन थिंग अगर आप यहाँ देखोगे, इसको आप हाईलाइट कर लो, रीजन फॉर स्टेट चेंजेस एडमिन डाउन, मतलब ये इंडिकेट करता है, इस इससे दिखाता है कि एडमिन मतलब मैन्युअली कोई एडमिनिस्ट्रेटर ने इसको डाउन किया है. सो व्हेनेवर यू आर एबल टू सी दिस टाइप्स ऑफ रीजन, इट टोटली इंडिकेट दैट इट हैपेन विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर. मतलब जो भी एडमिन है जो हमारे डिवाइसेस को मैनेज करते हैं इन द कंपनी, आप ऐसे समझ के चलो कि उन्होंने मैन्युअली किया है. अगर इफ यू आर एबल टू सी रीजन फॉर स्टेज चेंज एडमिन डाउन. ओके, थोड़ा सा और इसको डेप्थ में देखते हैं. इफ यू गो ऑन द cd देन var देन log and run the command ls space -lrth and we'll try to read our messages. This is the messages for today and for 7042. अभी हमारा टाइमिंग क्या हो रहा है, 7043, सो उसी के आसपास है. तो ये देखो थोड़ा सा रीजन दिखा रहा है यहाँ पर, एडमिन डाउन पीनोट ऑन, स्टेन चेंज स्टैंड बाय डाउन रीजन एडमिन डाउन पीनोट. इट टोटली इंडिकेट दैट इट्स हैपन बिकॉज ऑफ मैन्युअली, समवन हैज डन मैन्युअली. तो ये हमने अभी मैन्युअली डाउन किया, राइट. सो इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हो, इस तरह से आप टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप लॉग देख सकते हो एंड वी कैन टेल टू द tag or no, if required to share these logs to anyone in your team, so we can share and we can mention and we can troubleshoot like this. Okay, and it's saying region there is already an active member in the cluster, so
जब ने हमने क्लस्टर एक्सपेरिमेंट डाउन किया ना, तो अपने आप ट्रैफिक किस पर शिफ्ट हो गया, गेटवे 2 पर, एंड गेटवे 1 अभी डाउन है। फिर हम क्या करते हैं, उसको फिर से ऑफ कर देते हैं, क्लस्टर एडमिन अप। फिर से आप एक कमांड मारे वो cpha प्रोब। सो देखो अभी क्या है कि हमारा जो गेटवे 1 पहले एक्टिव था, अभी स्टैंड बाई बन गया, और गेटवे 2 क्या है, वो हमारा एक्टिव है। सो बिकॉज हमने यहाँ पर ऐसा सेट करके रखा है कि अगर मान लो ये एक्टिव है गेटवे 1 और ये स्टैंड बाई है, अगर गेटवे 1 डाउन गया तो गेटवे 2 एक्टिव बन जाएगा। लेकिन जैसे ही गेटवे 1 आप आया तो अपने आप वो रोल बैक नहीं लेगा, वी नीड टू डू मैन्युअली फेल ओवर। सो आपको मैन्युअली फेल ओवर करने के लिए वी नीड टू गो ऑन द गेटवे 2। सो लेट मी लॉग इन ऑन द गेटवे 2, 192 168 137.20 admin 3. Yeah, go on the expert, admin 123, and run the command cluster excel admin down, then up. तो जैसे हमने मैन्युअली फेल किया, तो आपको दो कमांड रन करना पड़ता है। हमें ट्रैफिक मूव करना था गेटवे 2 से गेटवे 1 पर, गेटवे 1 को एक्टिव बनाना था। तो हम गेटवे 2 पर क्लस्टर एस एडमिन डाउन किए, तो हमारा डाउन हो गया, तो उससे क्या हो गया, हमारा ट्रैफिक मूव हो गया गेटवे 1 पर, बट वो डाउन स्टेट में था। देन वी नीड टू रन द कमांड क्लस्टर एक्स एडमिन अप, सो वो स्टैंड बाई में आ जाएगा। इफ यू रन द कमांड cpha probe state, नाउ आवर गेटवे 1 इज एक्टिव एंड गेटवे 2 स्टैंड बाई। अगर जाकर फिर हम वारलॉग मैसेजेस देखते हैं, पढ़ते हैं कि क्या रीजन था, देन वी कैन रियलाइज इट। सो अगेन गो ऑन द दैट पार्ट cd, then varlog, and go varlog line, run the command ls space minus lrth and cat, and use these messages. See, we can read these messages. अभी हमने किया उसका दिखा रहा है, चेंज डाउन स्टैंड बाय रीजन देयर इज एलईडी, दैट इज फाइन। और ये दिखा रहा है हमने किया एडमिन डाउन, मतलब मैन्युअली किया हुआ है। ओके, उसके बाद में देयर इज एलईडी इन एक्टिव मेंबर, मींस एक्टिव गेटवे 1 गेटवे 2 दोनों एक्टिव स्टेट माइन में है। तो अगर मैंने हम एक को फेल ओवर कर रहे हैं, ट्रैफिक अनोदर पे चला जा रहा है, डाउन कर रहे हैं ट्रैफिक अनोदर पे चला जा रहा है। सो इट इज showing they log here, and also showing region admin down p node, means it is done by someone from admin team. Okay, okay, so this is about the logs. So we can realize log, we can also see a var log d messages. So we need to go on this path, and then we can read the same things. I already explained about the cpwd and fwd. So both are responsible generally to be related to ha things, related to monitoring of daemon. And our protocol run for HA, which protocol run CCP cluster control protocol, its work on the port UDP 8116. So आप क्या कर सकते हो, आप ये भी कमांड रन कर सकते हो, इसमें लेटेंसी नहीं दिखना चाहिए। TCP डंप अगर आप रन करोगे गेटवे एक्टिव पर, सो देखो यहाँ पर कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर आप मैं इसको कंट्रोल सी करता हूं, तो आप देखो 10.2.2.1 एंड 10.2.2.2 में कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहे हैं। मतलब अगर ऐसे डायग्राम से मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो ये इस इंटरफेस और इस इंटरफेस, मतलब ये 10.2.2.1 एंड 10.2.2.2 के बीच में कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन होते रहता है। ओके, इसीलिए इसको पता चल जाता है वेन एवर इट गोज डाउन, इसका हार्ट बीट उसको नहीं मिलता है, देन इट रियलाइज दैट पीयर हमारा डाउन है, देन इट विल टेक द एक्शन अकॉर्डिंगली। सो दिस इज हाउ वी इंपॉर्टेंट सीसीपी। so CCP is वर्क ऑन ऑलमोस्ट ऑल द एसी इंटरफेसेस, और इससे हमारा हार्ट बीट सिंक होता है, अदर इंफॉर्मेशन सिंक होता है, स्टेट सिंक होता है। सो इट्स वर्क ऑन द दिस इंटरफेस ऑल्सो। तो देखो हमने कंट्रोल से किया, कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन 10.2.2.2 एंड 10.2.2.1 ऑन द पोर्ट 816 UDP। इसमें आपको कुछ लेटेंसी नहीं देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल
अभी देखो हमारा जैसे यहाँ पर दिखा रहा है 748, 39, 39, 39। अब यहाँ पर मान को चलो 748 है, और यहाँ पर दूसरा हमें जो लॉग दिख रहा है 750 का दिख रहा है, मीन समथिंग गैप इन द मिडिल। सो वो हमारा इशू हो सकता है। तो इस तरह से वी कैन रियलाइज इन द प्रोडक्शन ऑल्सो। सो अगर कुछ भी एचएस रिलेटेड आपको दिख रहा है एंड एवरीथिंग लुकिंग गुड, बट फिर भी थोड़ा सा वी आर ऑब्जर्विंग सम थिंग्स, मैनुअली फेलियर हो जा रहे हैं, समथिंग इशू, तो आप ये भी कमांड रन कर सकते हो टू सी द लेटेंसी बिटवीन बोथ द डिवाइसेस। सो लेटेंसी नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पर अगर टाइमिंग का गैप दिख रहा है मीन इट्स, अगर गैप नहीं दिख रहा है देन एवरीथिंग इज गुड। ओके, same thing mention here. And last one is, then I will close the session. So last thing is cluster excel kernel debugging. See, so debug is only required, and debug is generally only suggested in the company if you are sure about the issue. अगर आप इशू के बारे में पूरा श्योर हो देन गो फॉर द डिबग। एंड एनीवे वी नीड टू शेयर द डिबग टू द टैग, सो टू रियलाइज इट। हम डिबग को उतना रियलाइज नहीं करते हैं ऑन विच लेवल, ऑन दैट वी कैन से आप डेप्थ लेवल पे आप एनालाइज नहीं करते हैं, वी नीड हेल्प ऑफ वेंडर मोस्टली। सो डिबग जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज लास्ट ऑप्शन ऑफ द ट्रबल शूटिंग। सो अगर आपको एचएस रिलेटेड डिबग करना है, क्लस्टर एक्सेस रिलेटेड, तो पहला कमांड होता है fwctl debug 0 टू ऑनसेट योर ऑल डिबग, मतलब पहले से जो भी डिबग रन हो रहे हैं वो ऑनसेट हो जाएंगे। एंड दिस सेकंड कमांड इज fwctl debug स्पेस माइनस बफर। सो बफर इज गोइंग टू स्टोर, इन बफर योर डिबग इज गोइंग टू स्टोर। सो हम जो भी आप डिबग करोगे तो इसी में स्टोर होगा, इसीलिए हमें बफर साइज सेट करना पड़ता है। And then third command is fwctl debug space minus m cluster. So m is module, which module cluster, and then we are sure about it. It should be related to p node, means interface, and then state config timer ccp. Okay, so this is related to module. So we need to sure, आपको प्रोडक्शन में श्योर होना चाहिए, आप कुछ भी मॉडल यूज नहीं कर सकते हो, बट इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल। So if you are sure about the module, then go for the debug. If you are not sure, then try to involve the tag. बट आप ये कमांड फॉलो कर सकते हैं। एंड देन fwctl, दिस इज द एक्चुअल कमांड। ये सब हमने बफर को हमने क्या किया, अनसेट किया डिबग को, ये हमने बफर सेट किया, इसमें मॉड्यूल सेट किया। और ये क्या होता है fwctl कर्नल डिबग, दिस इज द एक्चुअल कमांड। कर्नल डिबग स्पेस माइनस टी फॉर टाइम फ्रेम स्पेस माइनस एफ। एफ इज गोइंग टू बी, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि जब तक आप डिबग रन करे हो, जब तक आप खुद से स्टॉप नहीं करते हो, ये चलेगा ही, डिबग रन होते रहेगा इन बैकएंड, उसके लिए होता है। एंड दिस इज द पाथ गाइस। सो वार लॉग एंड दिस इज द नेम, इट्स अप टू यू, आप किस नाम से सेव करना चाहते हो। जनरली इशू आता है तो हम उस इशू के नाम से सेव कर देते हैं, डेट वाइज सेव कर देते हैं। देन वी नीड टू गो ऑन द लॉगिंग टू दैट डिवाइस विद हेल्प ऑफ वीएनएससीपी, एंड उसके बाद इस पाथ में जाओ और इस नाम से हमने डिबग को सेव किया, उस डिबग को आप बाहर ले लो एंड देन शेयर दैट डिबग टू द टैग, और वी कैन अपलोड दैट डिबग फाइल ऑन द पोर्टल एंड दे विल रियलाइज एंड शेयर विथ यू गाइस। उनका एनालिसिस वो शेयर करेंगे। सो दिस इज द पाथ, पाथ वी कैन शेयर अप टू यू, ये आपके ऊपर है आप कौन सा पाथ देना है, बट इट्स अप टू यू। फॉर एग्जाम्पल हम अभी हमारे पास टाइम है 4 मिनट्स, सो आई विल ट्राई टू लॉग इन आवर फायरवॉल विद द हेल्प ऑफ VNSCP. So VNSCP basically it is a SFTP server in every company. Generally we have SFTP and VNSCP. Sorry, VNSCP and FileZilla. So we can use as per your company things, like कौन सा आपके कंपनी में कौन सा सेटअप है। 191.168.137.10 and username is admin, password 123। तो देखो हमने क्या हो गया, तो हमने मान लो फॉर एग्जांपल आपने डिबग किया, और डिबग आपने रन किया, और आपने डिबग जो है सेट किया है इस पाथ में, तो आपको उस पाथ में जाना है। फॉर एग्जांपल स्लैश बार में जाओ, देन लॉग में जाओ, और आपने यहाँ पर जो भी नाम से डिबग सेट किए रहोगे उस नाम से यहाँ दिखेगा। देन वी नीड टू जस्ट कॉपी फ्रॉम हियर टू योर डेस्कटॉप एंड देन शेयर दैट फाइल टू द टैग और अपलोड दैट फाइल ऑन देयर पोर्टल। और थोड़ा बहुत आप भी रियलाइज कर सकते हो इफ यू आर गुड ऑन द दैट कोडिंग लेवल आल्सो। ओके, so I have already explained this part, TCP dump part. So it is very very important. TCP play vital role to monitor the others on the things like communication between the devices, two devices. So आप उसके साथ देख सकते हो अगर हार्टबीट में कोई भी डिले हो रहे हैं, then that is the cause.
This is the command for related to debugging. This command I have already shown to see the interface related things. And let me try to see this message also, varlog and d messages. We can see if anything here or not, because we have 2 minutes more. cd var log. Okay. Okay, we have already on that path ls space hyphen lrth. So we have d messages. So we can kite and read it. See, so आप इसको रियलाइज कर सकते हो एंड अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग एंड अगर कुछ भी उसमें सस्पिशियस मिलता है देन वी कैन टेक एक्शन अकॉर्डिंगली या फिर हम ये चीजें अगर टैग मांगते हैं देन वी कैन ऑल्सो शेयर टू देम ओके so these are the commands and debug commands and some step guys it is very important while doing troubleshooting the company and we can also use that things so I hope you guys like these sessions if you really like this session please share subscribe and like as much as possible thank you very much everybody